Hello and welcome Hello. to One United. My name is Paritosh Joshi and I'm here along with AK Singh, finally on video with us. Wali Siddiqui talking about the UEFA Champions League debacle, the game against West Ham and much more. First of all, welcome. AKS, बहुत टाइम बाद finally आपके दर्शन हो रहे हैं चैनल पे, क्या बात है? यार अगर हमारे टाइम पे आओगे तो दर्शन तो होंगे ही। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल आप अपना वरना टाइम शिफ्ट नहीं दूरदर्शन कर होंगे। सकते. See, चलो, let's talk about the game itself. UEFA Champions League. 2-1 loss. Lingard assist. कैसा लगा? For the other team. यार एकस तो वो तो स्टार्ट कर ऑब्वियस है ना, सिंस 2-1 लॉस. अच्छा, एकस हाँ एकस So, रिलैक्स. match, basically what the analysis of the match was, United played really well the first 20 minutes, and then I don't know what happened. Like Aaron Van Bissaka gave them like cocaine, or everybody went to sleep, and they made young boys look like Champions League बिग बॉयज। treble winners, 3 times, 4 times, 5 times winners. We They couldn't get the played like, ball yeah, once. they We couldn't dominated get the the game. ball even once, and every time we got the ball, it was gone. And it came to a point where Ole was like, "Yeah, I have to remove Ronaldo and Bruno because उनका कोई काम ही नहीं है गेम में क्योंकि उनको बॉल ही नहीं मिल रही." Provide in your party ball. And it was, I have seen worse performances from United, but whatever, you can't just give excuses of an AstroTurf or whatever. But all in all, every single We should be player we was should be winning horrible. these games. We should be winning these games and collect points because वो तो हमें ग्रुप थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर मिला हुआ है. लाइक तो अभी इतना ज्यादा रिस्क नहीं है अभी ऐसा एकदम से रेड. वैसे तो हमारा फैन बेस बहुत ज्यादा ट्रिगर हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हमारा एक तरह से हम लोग कंपैरेटिवली सेफर साइड पे हैं क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है वो कंपैरेटिवली इजी है. तो इतना बड़ा वो नहीं है कि रेड अलार्म्स बजने लगे पूरे ओल्ड ट्रैफर्ड पे. लेकिन ये ऐसे गेम्स है जो इन पे आपको पॉइंट्स लूज नहीं करने, स्पेशली द वे दे स्टार्टेड. इजी गोल, अच्छा गोल मारा शुरुआत में, ब्रूनो रोनाल्डो अच्छा कंबाइन कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाई वैन बिसाका डिड दैट टैकल. मे बी उसको बाद में बहुत सुनना पड़ेगा इस सब चीज के लिए, और सुना भी होगा डेफिनेटली. लेकिन अब बहुत सारे everything that could, I think everything that could go against United in that particular game went against United. Bali, off to you. Well, yes, if you look at how we started, we got an early goal, and we thought that this might be a walk in the park, considering that young boys had won just one Champions League game in their history. But yeah, Aaron Van Bissaka changed the dynamics of it, and as a result of that, we lost 2-1. But at the same time, the reason why I thought we would win was more to do with the players we have, because I know we have Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Bruno Fernandes up there, and uh, sometime or another they're going to create something which is going to lead to a goal, and they did that exactly. If you look at that pass from Bruno Fernandes, that was impeccable. That was something which doesn't happen every day. It was a wondrous assist by him, and Ronaldo just tucked it in for a goal. But even if you analyze, like Akis is saying that we were playing well, I think we just controlled the game well enough before 25 or 30 minutes. I don't think we played an expansive brand of football over there. And I really need us to see, I want us to play that kind of football because we now have the players. And all of you know what my stance is on Ole Gunnar Solskjaer, but I'm not going to say Ole out over here because we all know that he's not going to leave anytime soon. So he's basically here. But if he's here, he needs to improve and significantly, because by adding Cristiano Ronaldo to his squad, he's not only made us contenders of some big trophies, but he's also dug his own grave, because Ronaldo will not accept this mediocrity at all. And we all saw that It's even not in the about technical Ronaldo. It's area, not about. It's not about Ronaldo accepting it or not. By adding Ronaldo to Cristiano Ronaldo to your team, you have actually uh, uh, you have actually drawn a map on your back for you to be hit. तो अगर तू yeah, परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो पहले हो सकता है एक बारी को वो चांस मिल जाता कि सीडीएम नहीं है तुम्हारे पास, या फिर एग्जैक्टली तुम्हारे पास चांस था सीडीएम लेने का, एक वो ट्रांजिशन में प्लेयर नहीं है. अब क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो टीम में है तो एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द विंडो कि तुम्हारे पास अगर एक right. सीडीएम नहीं भी है
तो भी यू शुड बी कम्पीटिंग. इट्स मतलब अब कोई वो डाउट ही नहीं है उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं, हर टीम कंप्लीट नहीं है. सिटी के पास स्ट्राइकर नहीं है, तो क्या वो खेलना छोड़ देंगे? Right. दे आर स्टिल Right, परफॉर्मिंग obviously. अप. लिवरपूल आर कमिंग ऑफ द बैक ऑफ वन ऑफ द बैड सीजंस इन देयर पास्ट 3-4 years, और उनका पिछला सीजन कुछ खास Yeah. अच्छा नहीं रहा, और वो तो लास्ट में किसी तरह से चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर गए विद द रन ऑफ गेम्स, वो सब ठीक है. लेकिन चेल्सी के पास भी, चेल्सी वाज आल्सो लुकिंग टू ऐड अनदर सेंटर बैक कुंडे, बट दे कुडंट. तो हर कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही सकता है. हाँ, सीडीएम में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और वहां पर डेफिनेटली एक नीड है कि उसको फिल इन किया जाए, लेकिन ऐसा बार बार आर्गुमेंट नहीं पेश कर, हमारे पास सीडीएम नहीं है. And the thing is, अगर तू देखे, there were reports coming in that more than a CDM, Ole Gunnar Solskjaer wanted a right back, and there were reports coming in that Trippier शायद आ सकता है. If that was the case, then why have you given Aaron Wan-Bissaka a run of games? Because he's been poor in most of the games. Yes, he made that wondrous off-the-line clearance against Wolves, but अगर all in all उसका game देखे, while going forward, he's been suspect. और पिछला मैच में भी अगर देखे डॉनी वैन डे बेक और इसके बीच में जो 1-2 हुआ था, देयर वाज नो प्रेशर ऑन हिम. फर्स्ट टच एकदम गंदा, दूसरा टच ही, आई डोंट नो, ही ट्राइड टू ब्रेक दैट गाइज एंकल, एंड यस ही डिड ओवर रिएक्ट टू एन एक्सटेंट, बट दैट वाज अ सेंडिंग ऑफ. सो आई थिंक द टाइम हैज कम दैट चैलेंज पुअर था डेफिनेटली, लेकिन उसका अटेम्प्ट बॉल पे था. अब वो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट हर बार टैकल करने का है. मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब आई एम नॉट, मतलब मैं, हाँ, हालांकि आई एम एंग्री और वो सब, बट आई एम नॉट एबल टू पॉइंट फिंगर्स एट हिम, क्योंकि जैसे जो भी चीज खराब हो सकती थी ना उस गेम में, सब खराब हुआ आफ्टर द फर्स्ट 35 मिनट्स. वो मैं समझ गया, लेकिन यार फर्स्ट टच हाँ, बहुत गंदा हुआ. मतलब वही कि यू आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर नॉट प्लेइंग फॉर अ चैंपियनशिप साइड, या फिर कोई ऐसी साइड जो बस प्रीमियर लीग में compete करने के लिए किस तरीके से सर्वाइव करने के लिए रुकी हुई है. And if your manager asks you to bomb forward, you have to be a wing back, then you have to be good on the ball. You just can't tackle the person like 99 times out of 100. He's not playing for Crystal Palace over here कि जो बस बार-बार डिफेंडिंग करेगा. And at the same time, then अगर मुझे दूसरी बात समझ ये नहीं आई थी कि जब वो बाहर निकला तो जेडन सैंचो को बाहर निकाला. But our only alternative to win the game or get another goal was through a counter attack. काउंटर अटैक कहाँ से होगा? ज्यादातर आपके विथ से निकलती है, और अगर जेडन सैंचो का पेस नहीं होगा, सो काउंटर अटैक का भी जो वो है वो कम हो जाएगा पॉसिबिलिटी, बिकॉज रोनाल्डो डजंट हैव द लेग्स एनीमोर, ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट दैट क्विक. You needed a Jadon Sancho or a Mason Greenwood. Mason Greenwood didn't come in either. So basically आता all भी तो कैसे are आता? मेसन ग्रीनवुड तो लेके ही नहीं गए थे वो, शायद मेसन ग्रीनवुड को तो लेके ही नहीं गए. लेके गए हैं. It would have been a नहीं, clear swap. He was on the bench. I saw him training. लेके गए थे. और बट मुझे वही समझ रेड कार्ड के बाद ऑप्शन ही खत्म हो गया ना वो वाला. तो वही But उस red रेड card कार्ड के में बाद तो रोनाल्डो को you can substitute and you're getting Jesse Lingard, who's a playmaker, who's going to give the ball to others. Greenwood could finish those balls if he's near the box. मार्शियल को लाया तो मार्शियल पे उसने अब ट्रस्ट दिखाया. अब वहां पे लिंगार्ड ने ही पीछे करके हक दिया, तो क्या कर सकता है? तो वो भी वही मुझे समझ नहीं आया. 88th मिनट पे ही रिमूव्ड फ्रेड फॉर मार्शियल. 88th मिनट में मार्शियल क्या करता है फ्रेड की जगह, और जेसी लिंगार्ड को फ्रेड की जगह पीछे कर दिया. That's what I said. I've never seen Jesse Lingard so deep in the box, which is why उसको खुद समझ नहीं आया कि he passed the ball back to David De Gea, because he's never been so deep in his career. So there were a lot of question marks as to what he was doing. And yes, we've talked about Ole Gunnar Solskjaer's good things. Like there have been good points about him. For example, what he's doing behind the scenes, hierarchical structure वगैरह जो है उसने organize इस तरीके से किया है, players को खुश रखता है and all that. But in-game management, when it comes to 90 minutes, बहुत improvement की जरूरत है, because Champions League में we've won just 4 games out of 11, and we keep doing this. We lost against yes, PSG वगैरह भी included, but we also lost to Istanbul last season. Was it Istanbul? Yes. Yeah, it was Istanbul. This season we've lost to Young Boys. So बहुत चीजें improve करनी पड़ेगी, and like I said, मेरा stance same है, but I know he's not going anywhere, so he has to improve because the pressure is on him. Okay. इस बारे में कुछ ऐड करना है, फिर वेस्ट हैम गेम के बारे में बात करेंगे. I am really pissed off at Ole. Like almost every game he does have a mistake in him. Like I don't really understand the same thing what Wally said. Why would he take off Fred at the 88th minute? You're not going to score a goal. There's so much pressure coming in. You need someone to soak the pressure. And like Martial आगे क्या कर लेगा आगे? तू उसको कारपाव कप में भी नहीं खिलाएगा, तो उसको क्यों लेके आ रहा है? तू मेसन ग्रीनवुड को 10 मिनट दे दे, उसको क्या हो जाएगा? Maybe he wanted to just preserve Mason Greenwood. Maybe
he was more vulnerable at the AstroTurf. Maybe he's not that smart, or whatever his reasoning was. But very pathetic substitutions. He did the same thing in the Europa League final, which cost us. He did not bring a CDM in the 104th minute. Until the 104th minute, he didn't make a change. And here he made stupid changes, and that cost us the game. So Ole, in-game management, pathetic. Outside, In-game managing the management, egos, dressing room, good. But in-game I am not management, a big fan of I'm his. I'm not talking about the in-game management. मुझे लगता है in-game management को ज़्यादा criticism मिलता है. It's about the clutch situations. जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता था as a player, he is just performing opposite to that. He was known as a player to come in as a substitute and perform in clutch situations और final 20 minutes 10 minutes में गोल मारना. यहाँ पर जब भी the pressure turns की मतलब जैसे कुछ unexpected हो गया, जैसे यहाँ पर हुआ कि रेड कार्ड हो गया और वो जो गेम वो सोच के चल रहा था उसके ऑपोजिट गया, तब ही इज वल्नरेबल. अब हो सकता है ही इज वेरी न्यू इन हिज मैनेजरियल करियर, इसलिए कि मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है ओवर जैसे क्लॉप या पेप का. और टैक्टिकली वैसे भी इतना साउंड वो तो एक्सेप्टेबल है कि वैसे इतना ही इज नॉट अ टैक्टिशियन कि मतलब मैजिक कर देगा बिल्कुल टैक्टिक्स से. उस तरह का टैक्टिक्स भी नहीं है. बट सबसे बड़ी जो कंप्लेन मुझे लगती है यहाँ पर वो हर किसी को यही है कि when the things go wayward of his plan, तब वो बहुत ज्यादा vulnerable दिखता है, which is something that he needs to correct. और उसको But मतलब without You know that, what's also funny? he's very vulnerable. If De Gea was not there in the previous game, he would have lost or drawn against Wolves. Before that, Southampton, we survived. So he is यार वो not. तो फिर वो वाली बात है ना कि Yeah, अगर but then you are a अब ऐसा manager. अगर Why can't? if Alisson was not there for Liverpool, they would have lost against AC Milan. AC Milan played fantastic football. अब ये कोई बात नहीं हो सकती ना कि अरे नहीं, Not लेकिन exactly for Alisson. It was Fabinho who played exceptionally well. तो हर किसी के CDM पास played ऐसे प्लेयर, exceptionally well. वो अब ये वाली बात अलग है कि हेंडरसन ने हमारे पास गोल ये मारा बॉक्स के बाहर से, हाँ बहुत जो बढ़िया गोल बंदा मारा, जिंदगी में गोल नहीं मारता. गोल नहीं मारता, तो वो वन ऑफ है ना. और एसी मिलान ने ऑलमोस्ट टर्न कर दिया था वो गेम भी. वो But देख AC Milan की I saw the whole game, like हाँ I मैंने saw भी देखा, मैंने पूरा the गेम देखा. extended highlights. हाँ I don't think AC Milan deserved anything. The first half they were battered. हाँ limited chances. they were dominant, but what they turned ना फर्स्ट हाफ में 2 मिनट में 2 गोल मार दिए उन लोगों ने एकदम से. But मतलब दोनों run off गोल ले. तो they were poachers goal, like वो नहीं not भाई, poachers काउंटर goal अटैक, प्रॉपर exactly, काउंटर अटैक but गोल था यार. क्या बात कर रहा है, काउंटर yeah, अटैक हुआ प्रॉपर. तो no, the लेकिन second लिवरपूल goal पर was the ball that he went through. वल्नरेबिलिटी वेंट थ्रू. क्या वो प्रॉपर काउंटर अटैक था, लिवरपूल वर ऑन द अटैक, एकदम से एसी मिलान ने अटैक किया. और दोनों बार यही हुआ कि पहले फर्स्ट गोल में दे वर ट्राइंग टू हिट एसी मिलान, एकदम से काउंटर हुआ और वहां पर गोल कंसीड किया लिवरपूल ने. जस्ट उन्होंने सोचा कि 1 मिनट अभी गोल पड़ा है, विल गो अगेन, दोबारा गोल मारेंगे. बस एक लॉन्ग बॉल, एक शूट हुई हाफ में और फटा. बहुत अच्छा प्ले था वो, दोनों गोल में बहुत अच्छा प्ले था. बट एसी मिलान इज नॉट अ जायंट. अगर हम देखें कंपैरेटिवली, AC Milan, are you considering AC Milan to be a serious contender even without Zlatan Ibrahimovic? I don't think anybody gave them even a chance against Liverpool. But जिस तरह से played, especially Italian teams are known for their defense ना. अभी खैर हम लिवरपूल की बात क्यों कर रहे हैं, but still कि अगर ऐसे कोई Fabinho नहीं होता, if they don't have a Salah, they will be vulnerabilities. But लेकिन जो नहीं था उसके बारे में बात नहीं कर, जो हुआ उसके बारे में बात कर सकते हैं ना, कि जो अब जो obviously हुआ. But I'm still saying जो players इसके पास थे उसके बावजूद you're losing to young boys. It's not acceptable with the squad you have. बिल्कुल Only it. बिल्कुल ने वो सही बात है, लेकिन फिर ये वाली बात नहीं हो सकती ना कि डिहेया ने बचाया या फिर इसने बचाया. they'll be players अच्छा ठीक है, वो बात को तुम aside रखो, but his in-game management needs to improve, otherwise he needs to go simple. हर मैच में एक पैटर्न देखने को मिलता है. Our midfield gets over and there's always one dribbler who motors his way through our midfield, or it's either Almiron या तो वो साला सैंड मैक्सिमम है. कौन? ट्रायोरे अगेंस्ट वुल्व्स. हाँ, Traore. मतलब it's someone who just motors easily, who motors his way through midfield and then just gives a pass to the guy on the flank and they score a goal or something like that. And all three of our away games have been poor so far. Although we did win, but I don't think that we've been convincing at all. Given the squad that we have, we need to ensure our authority. मेरे हिसाब से लीड्स वाला गेम में हमने दिखाया था कि what we're capable of. But even अगर तू न्यूकासल को देखेगा, for 60 minutes we were actually a bit we didn't know what to do. Ronaldo got an easy goal over there, but the second goal was good. But they came back as well.
and thanks to 60 Bruno minutes तक तो Fernandes' नहीं, screamer 60 वगैरह. minutes तक तो नहीं, वो शुरुआत It took second half से end we were playing के well. 20 मिनट में we scored 3 goals, and end के 20 मिनट में we scored 3 Second goals. half we played well, So first half में we were under the pump. exactly, But but वही है okay, कि भाई the point being, whenever we are underperforming, he is not like, यार तू basically तू फ्रेड को बोल रहा है यार तू इसको मैन मार्क कर ताकि उधर से स्पेस बने, वो कुछ नहीं दिखता. If the players don't do anything exceptional on the pitch, there is nothing. There is no man management, and that is what is threatening and scary. Because this is, how can you expect United to win the league? They should be top to win the league. They are second favorites. Actually, they are third favorites. I know we all know that like Tuchel is a better manager, but once again we have to give his example. Anfield mein, when Reece James was sent off in the 45th minute, second half mein, even though like Liverpool had the ball, I didn't think Chelsea weren't under pressure because they knew what to do. And at the same time, counter attack mein, they looked lethal. They had like 2 or 3 chances. Yeah, exactly. पिछले मैच में in the second half we did not create a single chance against the young boys. वही तो दिमाग खराब हो रहा था देख के कि even if we had 10 men, I think counter attack में we would have been lethal, but वो players ही निकाल दिया आपने, Sancho निकाल दिया, Van de Beek of the first half में ही समझ आ गया था कि we are not playing well at the end of the first half. तू changes कर, तू changes छोड़, तू plan बना कि how do we go forward. They were playing exactly the same way how they played in the first half, and this is a pattern which we have been seeing in each and every game, that every time we're screwed up in the first half, second half we turn out the same way, unless the only difference is when we concede a goal. When we concede a goal, players are like, screw this shit, we're going for it. Yeah, that is the only difference, and that is what is scary. What is the point of having a manager what is the point of having a manager, basically? He's not a coach. Like, he's not the main coach. There are coaches for every position. Actually, I would blame them as well. Michael Carrick और ये सब जो खड़े हुए हैं, what are they doing? Like, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि they played the game for so long. Basically, it's Ole's decisions to get the players in and out. That you have to blame one person. You can't change the whole coaching. अच्छा, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ कि according to you, like you've seen Ole Gunnar Solskjaer for like 3 seasons, what is our style of play? Like जो भी पता है, I'm not taking a dig at him, लेकिन genuinely asking you, because I know what his style of play is. According to you, उसका style of play क्या है? पहले पारितोष तू बता. Get them on the break, use pace, get in behind. ज्यादातर वही होता है basically, and 3 साल में हम वही देख रहे हैं. So मेरा पॉइंट भी वही था, उस दिन भी मैं यही कह रहा था कि बॉल पोजीशन में हमें समझ नहीं आता है, हमें क्विक ट्रांजिशन की आदत है कि मतलब 4 सेकंड में गोल हो जाना चाहिए, जल्दी आगे लेके जाओ. अब हर किसी का तो ये तो बहुत वेग आर्गुमेंट है. क्या जोसे मरीनियो अगर डिफेंसिव फुटबॉल खेल के काउंटर अटैक खेलता, ही वन एवरीथिंग इन हिज करियर विद दैट फुटबॉल. और यू कैन टूकल पता है क्या सिस्टम खिलाता है? 5-3-2 खिलाता है टूकल 5-3-2 खिलाता है, और वो उसमें अटैकिंग फुटबॉल खेलता है. ये बहुत अगर स्टैट्स पे जाएंगे तो अटैकिंग फुटबॉल खेलता है, दैट्स लेकिन यही तो, पॉइंट है ना उसका. हालांकि डिफेंसिव शेप होता है, बट हिज टीम अच्छा, स्टिल क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चांसेस. सिटी के अगेंस्ट चांसेस यूनाइटेड नहीं बनाती. तुम अभी खाली एक गेम सिटी के अगेंस्ट, लीड्स के अगेंस्ट वगैरह हमें स्पेसेस. यूनाइटेड चांसेस नहीं बनाती, क्या बोलना चाह रहा है? यूनाइटेड चांसेस नहीं बनाती. सिटी के अगेंस्ट हमें स्पेस मिलेगी. सिटी इज टेलर मेड फॉर यूनाइटेड बिकॉज़ वो स्पेस क्रिएट करते हैं. तो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? एक गेम ऑफ हो गया तो क्या उसका तुम 2 साल 3 साल का क्रेडिट पूरा खत्म कर दोगे? यार एक गेम ऑफ कोई क्रेडिट कोई खत्म नहीं कर रहा. द बेसिक तो भाई वो एकस बोल रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ मैनेजर, और ये वाली बात. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ मैनेजर इन गेम्स लाइक दिस? हाँ, तो where the team is not performing, if it's not performing in the first half. तूने ये नहीं बोला ना, लेकिन that is the meaning. Sorry, I didn't say that. Then okay, sorry. तो बट वो सेम बात हो गई ना कि हाँ, क्रिटिसिज्म होगा इस गेम पे. ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले लाइक दिस विद द प्लेयर्स, पर क्रिटिसिज्म हर साल होएगा यार. मतलब तुम 3 सेमीफाइनल हारे हो, तुम 1 फाइनल हारे हो, तुम इस सीजन भी तुम वही सेम. इट्स द मिक्सचर ऑफ ऑल द सेम प्रॉब्लम्स. तो बात ये है ना कि अभी तक ठीक था, ठीक है. दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि अभी ये इस सीजन का पहला लॉस है 4 गेम्स में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पहला लॉस है. साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ड्रॉ था, वुल्व्स के अगेंस्ट जीते, और अपना न्यूकासल के जीते, लीड्स के अगेंस्ट. ठीक है, पहला लॉस है ना ये. तो पहला लॉस है. जब अगर सिर्फ एक लॉस
सारा क्रेडिट हमने अभी हम आफ्टर द सीजन वी वर डिस्कसिंग कि ठीक है एक सीजन देते हैं, आफ्टर वन लॉस ठीक है बहुत पुअर लॉस था, नहीं होना चाहिए था, गिवन दैट क्रिटिसिज्म, गिवन दैट एक लॉस के बाद तुम सीधा सब कुछ खत्म करके कि हाँ तुम 3 सीजन नहीं, सही सब कुछ फुटबॉल खत्म खेल नहीं रहे हो हो, रहा। तो बात यही है ना कि द होल फैन बेस एक्ट्स लाइक दिस, बात वही आती है बार बार कि अच्छा ठीक है लेकिन हार ये भी गए, तो समझना चाहिए कि ठीक है, अगर अच्छा why is अगर the fan base इफ वी प्ले लाइक दिस, वेस्ट हैम का गेम है, वेस्ट हैम के बारे में बात करते हैं, इफ वी प्ले लाइक दिस अगेंस्ट वेस्ट, क्योंकि वेस्ट हैम इज नॉट अ टीम दैट यू कैन पुश ओवर इजीली, ठीक है, डेक्लन राइस बहुत अच्छा खेल रहा है, अभी उनका यूरोप में गेम था, बहुत अच्छा खेला है वो, सूचक डेक्लन राइस ने गोल भी बहुत अच्छा, सूचक बहुत अच्छा है, दे हैव प्रॉपर प्लेयर्स, उनका हालांकि वो नहीं होगा टॉप स्ट्राइकर मिकेल एंटोनियो? वो नहीं होगा उनके पास, और ये अच्छी चीज है यूनाइटेड के लिए बिकॉज वो बहुत लीथल है स्ट्राइकर इस टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट भी अगर अगर तब भी लगातार खराब परफॉर्मेंस 2-3 गेम से, तब आई कैन अंडरस्टैंड कि नहीं ये बहुत ही खराब जा रहा है, क्योंकि और अभी अभी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक गेम के बाद मुझे नहीं लगता है I'm fair है not कि saying एकदम in पैनिक। any way point to change the manager. अरे अब क्या कर सकते हैं इसके, जो हमने वी हैव ऑलरेडी मेड द पॉइंट्स ना, बार बार वही चीजें बोल के क्या करेंगे, और अभी तक ऐसी कौन सी बात है इस गेम के बारे में जो नहीं बोली गई है, क्या बता मेरे को। No, the whole thing is that we all have summarized or given the synopsis in a similar way because, or not all of us, just me and Wally have done it because we have seen discrepancies like in the center of the midfield where we have literally screwed up. ठीक है, So, okay, he screwed up, but then you see the previous games. Southampton said draw tha, was that acceptable? Southampton said, can you draw? Like City beat them 5-0. सिटी You tell me, is it okay? नॉर्विच को हराया ना अभी। Okay, whatever. Southampton's form is low. I don't know Norwich or whoever they beat, Leicester. I don't know. I'm not thinking right now. But basically, Southampton, we beat them 9-0 last season. या लास्ट सीजन, Yeah. So is it acceptable to draw with them? यार तो 9-0 वाले गेम से तू अगर लेके चलेगा फिर नहीं, कोई I'm क्या not ही बोलेगा। comparing. I'm just saying कि उनका level वो है. They just, Yeah, I think they they have- finish in the bottom half. they drew against न्यूकासल अभी अगस्त में, और उससे पहले ईएफएल में उन्होंने 8-0 एक टीम को पेला है न्यूपोर्ट को, और साउथहैम्पटन ने वेस्ट हैम से भी ड्रॉ खेला है, अभी उनका अगला मैच है सिटी से अब, ठीक है, तो साउथहैम्पटन अभी लीग खेल रहा है, तो साउथहैम्पटन, मैं ये नहीं बोल, फिर भी यूनाइटेड को हराना चाहिए था, वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि अभी तक ऐसा फुटबॉल नहीं हुआ है कि बिल्कुल जिसने पैनिक बटन सेट कर दिया हो, एक नहीं, बीएससी गेम पैनिक के अलावा, बटन नहीं फिट हो रहा. नहीं बीएससी वाले जो यंग बॉयज वाले गेम के अलावा ऐसा कोई गेम नहीं हुआ जिसमें पैनिक बटन हिट कर गया हो। हाँ यार वुल्व्स हालांकि के साथ साउथहैम्पटन, पैनिक बटन था, क्यों नहीं था वुल्व्स के साथ? वुल्व्स आर नो पुशओवर्स भाई, वुल्व्स के साथ व्हेन वी हैवंट स्ट्रगल्ड, वुल्व्स के साथ तूने पुराना गेम देखा है कोई, वुल्व्स आर नो भाई लेकिन given the recruitment that we have now, I don't think these teams are supposed to be. बात ये नहीं है, डेफिनेटली अबे, लेकिन जो गेम जीते हैं उसमें भी तुम अगर ये बोलोगे कि नहीं इसमें ऐसे कैसे जीते और बिल्कुल डोमिनेट होके, वो अबे हर गेम नहीं, तुम यू कांट प्ले एवरी गेम लाइक यू प्लेड अगेंस्ट लीड्स ना, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टू प्ले 38 गेम्स एंड स्कोर 2-3 गोल्स अगेंस्ट एवरी टीम, दे वोंट बी गेम्स लाइक दिस, और स्पेशली द लीग दैट वी हैव इन टुडेज टाइम, दे विल बी क्लोज गेम्स, और अगर इफ यू विन तब उसमें भी तुम क्रिटिसाइज करोगे तो फिर आई कांट से एनीथिंग। नहीं, क्रिटिसिज्म तो बनता है यार, वुल्व्स के साथ द गेम वी वन, आई थिंक दैट वाज प्योर लक। अगर तेरे को वुल्व्स का गेम तूने देखना है ना, 2-3 साल का गेम देख उनका, और उससे पहले ना वुल्व्स अगर अभी भी नहीं तो 2012 जब उससे पहले फर्गी जब मैनेजर था ना, वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के नाम से आती थी, तब का गेम देखियो, वुल्व्स वर नेवर अ टीम टू पुश ओवर, ठीक है, वुल्व्स ऑलवेज प्ले वेल, और यूनाइटेड मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि यूनाइटेड शुड बी बीटिंग देम कंप्लेसेंटली, लेकिन बात ये कॉम्प्रिहेंसिवली, सॉरी, यूनाइटेड शुड बी बीटिंग देम कॉम्प्रिहेंसिवली, लेकिन जब उसको जीत गए गेम को, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि जीते हैं, ठीक है, फैक्ट है कि हम जीते हैं, और फैक्ट ये भी है कि मजा नहीं आया जीत के वो गेम, दैट वाज अ स्केयर फॉर Because you're struck, I think. चला गया। Because is struck. WhatsApp, I think he'll be back anyway. हाँ हो जाएगा। WhatsApp पे फंस गया था। हाँ आ गया। Can you hear us? Yeah, I can hear you, bro. हो गया, आ गया तेरा वीडियो, आ गया, फंस गया था तू। अब चल रहा है?
हाँ सब चल हाँ रहा है, चल रहा है। बता बता। Okay, so basically we have played 4 games. Okay, in हाँ the 4 games, actually we played one, 4 2, games, 3 in 3, the league, 4. We played 5 games. 4 games in the league, 1 in the Champions League. Yeah, so we played total 5 games. The Leeds United was a comprehensive great win, and Newcastle. Two Yeah. games where we were very good. The other games we were average. That is my synopsis. That is my opinion. I, Other games we were that is average. what We were poor to against have. Young Boys. Other games average, poor, very poor against Young Boys, especially after the red card. We could have played better after the red card, and we should be playing better because we are Manchester United, and with the depth that we have, we should be playing better. That's the thing. Wally, do you have to add on to this, and then we'll shift to West Ham game? No, that's all. I think like we all get to know like Ole Gunnar Solskjaer will be defended by a lot of fans as well. But at the same time, I think he should be pressurized because अगर pressure नहीं डालेगा, I think he won't try नहीं, anything he new. should be pressurized. And और pressurized, ma'am, you guys did not say a point. I'll say this. अभी कुछ statement आया था. I don't know कि कितना उसमें truth है और कि मतलब क्या वो उसका है भी नहीं, because I saw this on Twitter. ठीक है, तो I am just alleging this कि जो शायद वली you shared this कि we went out of the Champions League last season and we went to the final. These are yeah, ups and downs. It's like अब आई एम नॉट श्योर कि वो स्टेटमेंट ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उसमें तो नहीं बोला था वो वेस्ट हैम से पहले वाले में. ठीक है, उसमें नहीं, तो but वो बोला है. This I saw it on Sky Sports News or something. हाँ, तो मतलब हो सकता है वो अच्छा उससे बोल, तो ये स्टेटमेंट है जिसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि भाई यू कांट कंसिडर गोइंग आउट ऑफ द चैंपियंस लीग एंड देन मूविंग ऑन टू द यूरोपा लीग फाइनल टू बी अ सक्सेस अप yeah, एंड डाउन. यू कांट कंसिडर दैट, स्पेशली व्हेन यू हैव अ स्क्वाड लाइक दिस. तो इसको अप एंड डाउन, ये मतलब डिफेंसिव होने वाली है और डिफेंड करने वाली बात है, और ये चीज है जिसको इफ यू वांटेड टू क्रिटिसाइज, इस पे क्रिटिसाइज करो क्योंकि ये फेयर है, ये चीज फेयर है. जो चीज अनफेयर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ये चीज फेयर है कि तू ये नहीं बोल सकता भाई, तू यूनाइटेड का मैनेजर है, तू यू आर नॉट फकिंग मैनेजिंग वेस्ट हैम की, तू बोल रहा है हाँ हम चैंपियंस लीग से बाहर जाके यूरोपा लीग फाइनल But I will not criticize him on that. Why? Because Mourinho would have said the exact same thing. Any manager, yeah. even I would even I expect think he would have. बात Pep नहीं. Guardiola. Pep कोई- Guardiola would have said the same thing. हाँ नहीं बोलेगा तो नहीं, I don't think Pep would लेकिन have said it. अबे नहीं बोल सकता है, बोलेगा. अबे हर मैनेजर बोलता, लेकिन क्रिटिसिज्म हर मैनेजर का होना चाहिए इस बात की हाँ, भाई तू वो कैसे बोल होना सकता है. चाहिए. That's correct. हाँ, कोई भी बोलेगा भाई तू कैसे बोल सकता है कि तू चैंपियंस लीग से बाहर गया और फिर यूरोपा लीग का फाइनल खेला, तो अप एंड डाउन है कि इसने Exactly. इस बार भी पहला. I was ये shocked. बहुत हाँ, रोनाल्डो वुड बी शॉट. रोनाल्डो बोले क्या बातें कर रहे हैं साले, यूरोपा Ronaldo, लीग फाइनल भाई, जाने. The तो But the same point thing is when बस Mourinho said second was my biggest achievement or whatever. हाँ exactly. तो अरे हर मैनेजर अपने आप को डिफेंड करता ही है ना, उसका फेयर है वो. ठीक है, वो तो करेगा ही अपने आप को, वो बोलेगा हमने फाइनल पहुंचाया. और बात यह है कि उसने 2 साल में प्रोग्रेस दिखाया भी है, लेकिन अब प्रोग्रेस इतना पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो फाइनल भी पहुंच चुका है, तो सेमीफाइनल पहुंच चुका है. अब इस बार जीतना पड़ेगा, और जीता नहीं तो फिर उसके बाद फिर टाटा बाय बाय, फिर हर कोई बोल देगा. क्योंकि But अब my point being again, for like we are better off by having no manager exactly met in games like this where we are against the wall, like our backs are against the wall and we need a reaction. Ole does not give that reaction for me. That was my point of saying why ओके, United like we'll see in the future games. अगर वो बार-बार हमें यही रिपीटेटिव दिखता है कि बार-बार जब हम क्लच सिचुएशंस में आते हैं या एक जब प्रेशर बढ़ता है, तो वेस्ट हैम पे शिफ्ट करने वाली समरी कुछ बस बोल रहा है. ये हाँ, बस आखिरी चीज यही बोलना चाह रहा हूँ कि काउंटर अटैक पे we're a lethal team, one of the best in the world, like RB Leipzig, PSG सबकी हमने वाट लगाई हुई है in the Champions League. But like with the individuals that we have, it's a given that that teams will be sitting back as well. Yeah, तो उस टाइम में I want him to adapt a newer and better strategy कि हम quick tempo नहीं football ब्रेक तो खेलवाए किया था, with our ब्रेक तो balls in किया our था feet. हमने विद न्यूकासल जब क्योंकि न्यूकासल स्टेड बैक अ लॉट. ठीक है, वो सेंट मैक्सिम की ड्रिबलिंग और पेस पे ही रिलाई कर रहे थे बार-बार, और उसमें हालांकि वो सिस्टम वर्क भी किया रोनाल्डो के साथ, वो करेगा भी, क्योंकि रोनाल्डो इज समवन हु विल गेट यू गोल्स लाइक दिस कि अगर टीम बैठेगी सेटबैक, बिकॉज ही इज वेरी लीथल इन द एयर. एज सून एज ही गेट्स इन द बॉक्स, ही इज probably the most lethal you can get around the world. तो अभी देखना ही है कि बार-बार अगर, क्योंकि ऐसा ये गेम बार-बार नहीं होगा कि 35 मिनट में तुम्हारा राइट बैक रेड कार्ड हो गया और बिल्कुल लास्ट मिनट में. अभी बाकी गेम्स के अगेंस्ट देखते हैं, क्योंकि अभी साउथहैम्पटन से हम देख रहे थे कि साउथहैम्पटन यूनाइटेड के अगेंस्ट जैसे मतलब दे गेव यूनाइटेड अ टफ फाइट. सिटी के अगेंस्ट अगला गेम उनका जैसे अभी यूनाइटेड का वेस्ट हैम के अगेंस्ट है,
अगला साउथहैम्पटन सिटी है, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि सिटी कैसे खेलती है उनके अगेंस्ट, क्योंकि सिटी डोंट हैव अ डेजिग्नेटेड स्ट्राइकर, क्योंकि उन्होंने द वे दे ब्रेक डाउन टीम्स, नॉर्विच तो खैर मैं कंसिडर ही नहीं करता, बट द वे दे प्लेस अगेंस्ट आर्सेनल दैट वाज वेरी गुड। आर्सेनल की तो भाई उन्होंने डिमोरलाइज करके बिल्कुल कमर तोड़ दी थी। By the way, टीम का Southampton drew with West Ham in the last हाँ game. वेस्ट हैम के साथ ड्रू So किया और रेड कार्ड था वेस्ट हैम को, रेड कार्ड वो एंथनी मिकेल वाला ही तो वो हुआ। आखिरी मिनट पे हुआ था आई गेस। Mikel Antonio. Anyway, but I तो want to वेस्ट हैम give वाले गेम की बात this. करते हैं, वेस्ट हैम I वाले want गेम to की give बात। this to Ole that at least after 4 games we're टॉप top ऑफ द of लीग है the भाई, league. बात वही तो मैं बोल Yeah. रहा हूँ कि टॉप ऑफ द लीग है भाई हम लोग 4 गेम के बाद, क्या है इतना क्या हो गया है? ठीक है अब हम बहुत गंदा खेले यंग बॉयज के अगेंस्ट, मतलब बहुत अच्छा खेलना चाहिए था क्योंकि यंग बॉयज है वो सारा, उसको तुमने भयंकर अटलांटा के अगेंस्ट भी अगर तुम थोड़ा डिफेंसिव होकर खेलता ना मैं समझ जाता, क्योंकि अटलांटा को भाई अटलांटा ने इंटर मिलान एसी मिलान को छका दिया था पिछले साल, बहुत अच्छी टीम है अटलांटा, और अटलांटा से वो भी आया Atlanta था। last हाँ हाँ Champions League में भी बहुत उन्होंने अच्छा खेला, धमाका कर दिया. बहुत अच्छा। तो अटलांटा से वो आया अरे यार वो है ना 16 नंबर कौन है हमारा, एडम जिसका निगल हो गया यार, तो है एडमा अडमा, हाँ 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 नहीं अमाद 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 अमाद, अमाद करे सॉरी अमाद, हाँ, अमाद Amad अटलांटा से Diallo. तो है, अटलांटा से तो आया वो, डियालो अटलांटा से है। उसका नाम ट्रेओरे था, उसने ड्रॉप कर दिया नाम शुरुआत में, अगर तुम्हें याद हो जब वो यूनाइटेड जस्ट ट्रांसफर होता ना, इसका इंस्टाग्राम पे भी ट्रेओरे था, उसका बाप का नाम है वो, उसने बोला मेरा रिलेशन बहुत खराब है फादर से, उसने You ड्रॉप know कर दिया। what's you know हाँ what's funny? ड्रॉप कर Although दिया। I'm like a Jadon Sancho fan हूँ मैं बहुत बड़ा. Although I'm a Jadon Sancho fan, तू but तू Amad डियालो फैन Diallo भी has है, had तू डियालो फैन भी है बहुत नहीं लेकिन खतरनाक। मैं हाँ मुझे सांचो ज्यादा चाहिए था, but उसके बावजूद I think Amad has had a better start for United if you look हाँ at it हाँ हाँ from the इम्पैक्ट right. एकदम से इम्पैक्ट अच्छा था उसका काफी, लेकिन बात हाँ, ये है ना he कि scored against Milan also. he is not a designated But he is not a designated who's right winger, वो पता है कैसा है, he is more of a central striker type of, कि वो कट इन करके गोल मारेगा। सैंचो इज मोर ऑफ लाइक असिस्ट, और हमें जो चाहिए था ना राइट विंग से, आई थिंक व्हेन जेडन सैंचो अडेप्ट कर लेगा ना, जेडन सैंचो विल बी अ बेटर पिक, क्योंकि ही विल हेल्प द वंस ऑन द लेफ्ट एंड द स्ट्राइकर। जो डियालो है, डियालो इज आल्सो गुड, बट डियालो का सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट है। डियालो पता है कब बेटर है, जब एंथनी मार्शल है स्ट्राइकर, एंथनी मार्शल लव्स टू हैव अ लिंक अप प्ले ना, तो उसके साथ बहुत सही रहेगा और डियालो का, क्योंकि डियालो इज आल्सो अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। चलो तो जो बहुत भी मजा है आएगा। ये हो गया. Let's start with West Ham. वेस्ट हैम गेम को फटाफट खत्म करते हैं कि प्रेडिक्टेड 11 और वेस्ट हैम के अगेंस्ट क्या प्रेडिक्शन है। पहले वली तू बोल क्या प्रेडिक्टेड 11 है और किस तरह का सेटअप लग रहा है और क्या स्कोर प्रेडिक्शन होगा। Like, David De Gea should be starting in at goal once again. And I honestly, अगर मैं मैनेजर होता मैं डिएगो डेलो को चांसेस देता, but I know वाइन बिसाका will be starting over here. So नहीं मेरे वाइन को लगता है, बिसाका मतलब ये शाउट है, अगर इफ ही वांट्स टू डिसिप्लिन विसाका ना, तो ये शाउट हो सकता है कि तू बोले कि तूने बहुत फकअप किया, अब अभी स्टार्ट डेलो करेगा और फिर देखते हैं कि तेरे को, क्योंकि हाँ, तेरे वैसे that मतलब should ये be the way. डिसिप्लिन करने का तरीका हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि बिसाका इज आवर गो टू मैन, बट आई लव, अगर ऐसा करता है तो आई लव इट। I think Van Bissaka has had a very poor and average start to the season, man. So he should be हाँ benched मेरे हिसाब से तो. So, और डेलो but I डिजर्व करता think है, he will डेलो वाज start. प्लेइंग वेल, डेलो वाज प्लेइंग वेल Yeah, अगेंस्ट, Delo offers a lot while going forward. आजकल के अगर तुम और modern day प्लस विद football ब्रूनो देखोगे, रोनाल्डो का then लिंकअप भी अच्छा है बिकॉज़ दे प्ले इन yeah. पोर्चुगल। So your wing backs have to be like they have to be prominent while going at the while going up top, and they need to provide a lot of crosses and assists, and I think he can do that. So खैर अभी वैन बिसाका ही स्टार्ट करेगा, Varane और Maguire centre back pairings, and left back Luke Shaw, and this will be interesting. I think for West Ham he will be starting Fred, because I have a feeling that their midfield can overpower us once again. So you need one of your runners, and like Fred is one of his favorite footballers out there. So I think Fred will start in, along with Paul Pogba should be at central midfield. Rashford, by the way, Rashford is also in training, but he won't हाँ start against लेकिन West वो Ham. अभी नहीं उसको एक आध हफ्ता दो अभी, क्योंकि वो अभी एक हफ्ता ट्रेनिंग, नहीं, उसको 3 हफ्ते और है. अभी वो अभी 3 मतलब हफ्ते और है. उसको मतलब 10 weeks थे from August नहीं नहीं 1st. अरे वो ट्रेनिंग के ऊपर होता है कि वापस भी जल्दी भी आ सकता है, वही वाली बात है कि ट्रेनिंग भी उसने जल्दी शुरू कर दी है, तो बिकॉज ही ट्रेन्स हार्ड और ही इज वेरी डिसिप्लिन, तो वापस आ सकता है, बट एटलीस्ट 2 हफ्ते लगेंगे उसे अभी फिटनेस, क्योंकि उसका तुमने Which is मसल basically after the next international हाँ break हाँ he'll अभी be है back. window, अभी है 3 टाइम। weeks. तो सही है, तो फिर Pogba and Fred I think will be like midfield pairing, and then while going up top I think left पे
He'll be starting Jadon Sancho on the left once again, Mason Greenwood on the right, and Cristiano Ronaldo up top. So basically the same lineup in the last Premier League. Yeah, basically the same. बस वो ये कि Pogba और उसने वरान को central रेस्ट इसलिए midfield दिया, बनाएंगे. वरान को रेस्ट देना चाह रहा था वो तो भाई हक दिया उसने, क्या कर सकता है. लेकिन मेरे को I ये think भी Matic को he shouldn't have, को वो तब use करेगा against teams which will not have much of the ball and which will basically just sit back like Newcastle. West Ham on the other hand, they are a team who like to play with the ball. तो उसके against Matic, so इसलिए I think he'll go with Fred for this match. Fred और हाँ, Scott McTominay भी train कर रहा था. Scott McTominay could also make a comeback at the bench. Start नहीं करेगा McTominay, but he'll be in the bench I think. हाँ, Ikas. So my score prediction will be, I think. prediction बताऊँ या बाद में? बोल. I think 2-1 in favor of United. Ikas. So I think it's exactly the same lineup as Wally said. However, I feel Ronaldo should be substituted by the 60th minute. Or maybe actually not, because we're playing in the Carabao Cup. You know how much he hated being substituted in the last match? भाई वो वहीं sack कर देगा Solskjaer को. No, why not? He hasn't had. Like I would want him to be fresh for the next week's game against in the Premier League. He won't play in the Carabao, I'm sure, but he won't. Bench पे तो रहेगा ही यार. Bench पे तो रहेगा ही. Okay, but I would want Ronaldo to get rested because I want him to perform in the league. बात ये है कि अभी प्रीमियर लीग में भी वेस्ट हैम से है, फिर काराबाओ में भी वेस्ट हैम से ही है, और वेस्ट हैम काराबाओ वाले में तो वो भी खेलेगा मिकेल एंटोनियो. And if no, I don't think he'll play. It's a straight red. तो स्ट्रेट रेड एक मैच होता है यार. I don't know, I'm not sure. एक मैच ban. एक मैच होता है. 3 मैच बैन लगता है अगर आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, अगर आपको स्ट्रेट रेड के बाद वो लगती है ज्यूरी, तब होता है 3 मैच बैन. ऐसे नहीं होता. वो यूरोपा में भी खेला है. यूरोपा में तो खेल से डोमेस्टिक कंपटीशन इज 3 मैच बैन. नहीं 3 मैच बैन नहीं होता. आई डोंट थिंक इट्स 3 मैच बैन. 1 मैच बैन होता है. 3 मैच बैन होता है आपका, या भी क्या होता है, या रेड कार्ड पाइल अप कर जाते हैं, इस टाइप का कुछ होता है. 3 मैच बैन इज वेरी भाई डिसिप्लिनरी वो लग जाती है उसके, कि अगर आपका बहुत डेंजरस था टैकल, तब होता है कि मतलब आपने बिल्कुल पैर वैर तोड़ने पे चले गए थे जानबूझ के, तब उसके बाद 3 मैच 5 मैच 8 मैच के बैन लगते हैं. उसको लगा था 8 मैच का बैन, क्या कहते हैं, लुइस सुआरेज को लगा था शायद, जब उसका रेसिस्ट जाइब वाला आ गया था. 5 मैच का बैन लगता है. बहुत डिफिकल्ट भाई, ऐसे नहीं लगते 3 मैच का बैन. 3 मैच भाई क्लब रो देगा. So basically, I think Ronaldo should be, like, if we are comfortable in the game, I don't know where we will be in the 65th minute, but अगर हम 1-2-0 भी जीत रहे हैं तो फिर सब्स्टिट्यूट 1-2-0 भी जीत रहे हैं. If we are winning by at least 2 goal margin, then yes, he should take off people, but without that, I wouldn't do anything. अगर रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट करता है तो फिर उसके बाद क्या टैक्टिक चाह रहा है? What are you expecting? Attack would be the same. Fernandes, Sancho, and Greenwood. वो बाहर नहीं आएगा. नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तू सब्स्टिट्यूट चाह रहा है रोनाल्डो को, रोनाल्डो के बदले कौन आएगा? अच्छा, रोनाल्डो के बदले I would put Greenwood top, and right पे I would take Sancho, and left पे I would get Pogba and then get Van de Beek in. I would change the. He wants to create space for Van de Beek now. अब समझ आया मुझे. So and if Cavani starts getting fit from next game, so it'll be Cavani with straight swap. हाँ, नहीं वो हो सकता है. But I won't be surprised अगर डबीक को इसमें या फिर कारबाओ वाले में स्टार्ट करे वो, क्योंकि डबीक कारबाओ में करे. हाँ, और फिर वो पता है क्या, वो पॉगबा को खिलाएगा इज लेफ्ट, वो जस्ट बिहाइंड खिलाएगा ब्रूनो और वैन डी बीक हैं, और स्ट्राइकर पे रोनाल्डो, ऑन द राइट या तो सैंचो रहेगा या फिर ग्रीनवुड, और फिर पीछे फ्रेड, और फिर या वो क्या नाम है, मैकटोमिनी आता है तो मैकटोमिनी शायद, वरना फ्रेड. Yeah, I think that is his lineup for the season, I think. मतलब ये ऐसी टाइप कि आप पॉगबा खेलेगा या तो पॉगबा इन टैंडम खेलेगा जब तक, और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रैशफोर्ड का आना है. जब तक रैशफोर्ड फुली फिट नहीं है तो पॉगबा इन टैंडम ऑन द लेफ्ट और सैंचो विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. ठीक है, जैसे ही रैशफोर्ड फिट होता है, रैशफोर्ड वुड बी अ डेफिनेट स्टार्टर ऑन द लेफ्ट. And then that will be a problem on where will you put Greenwood.
ग्रीनवुड राइट से ही आएगा, सैंचो और ग्रीनवुड विल हैव टू Then if Sancho goes on the bench, फिर उसका और confidence low होएगा. नहीं सैंचो वुड प्ले रेगुलरली, पता है क्या होगा, ग्रीनवुड को वो लाएगा एज स्ट्राइकर बीच बीच में, या तो ग्रीनवुड और सैंचो में चेंज होएगा, और ग्रीनवुड रोनाल्डो को आप सारे गेम नहीं खिला सकते 90 मिनट, ठीक है, जब रोनाल्डो ऑफ जाएगा और खासकर कराबाओ वगैरह में, तो उस टाइम पे स्ट्राइकर पे खेलेगा कवानी ग्रीनवुड इन टैंडम, ठीक है। ग्रीनवुड के पास दो ऑप्शन है, या तो स्ट्राइकर खेलेगा राइट विंग खेलेगा, सैंचो के पास दो ऑप्शन है, या तो वो लेफ्ट विंग खेलेगा राइट विंग खेलेगा। जब रैशफोर्ड फिट होएगा, और रैशफोर्ड भी हर गेम नहीं खेलेगा एकदम से, तो उस टाइम पे भी या तो पॉगबा, सैंचो और रैशफोर्ड इन टैंडम खेलेगा। ये इंटरेस्टिंग है कि इनको मैनेज कैसे करेगा, क्योंकि हर किसी को खुश भी रखना पड़ेगा, हर किसी को गेम टाइम चाहिए, हर किसी को आप कैसे लूप में और रखते हैं। सैंचो को तो ये देगा ही देगा, क्योंकि अभी खरीदा, प्रायोरिटी सैंचो होएगा. हाँ The whole issue is ग्रीनवुड को ना बिठा दे. नहीं ग्रीनवुड को नहीं बैठा सकता, ग्रीनवुड के बैठाएगा बहुत हल्ला मच जाएगा। ग्रीनवुड को अब ग्रीनवुड को रेगुलरली बिठा नहीं सकता, सैंचो को बिठाना नहीं चाहिए भाई, साथ में लेफ्ट में रैशफोर्ड फिट होएगा, वही तो है। ये तो इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे करता है मैनेज, इतने ये तो प्लेयर रख तो लिए, ये इतने प्लेयर रख तो लिए, और अभी तो हम मार्शियल को काउंट ही नहीं कर रहे, मार्शियल को तो फेंक दिया हमने कि तो बाढ़ में जा, मार्शियल को निकाल दिया पूरा पूरा। ये बहुत मजेदार होगा। मार्शल प्रेडिक्शन दे, एक प्रेडिक्शन क्या होगा? मेरी प्रेडिक्शन होगी 3-1. 3-1 यूनाइटेड। 3-1 यूनाइटेड. लास्ट मेरे लिए Last year याद है क्रिस्टियानो मारेगा 1, पॉगबा 1 और ग्रीनवुड 1. पॉगबा, क्रिस्टियानो, ग्रीनवुड, और उधर से और कौन? 3 डेक्लन राइस। असिस्ट ब्रूनो. ब्रूनो, अच्छा 3 असिस्ट। और उधर से कौन मारेगा? डेक्लन राइस। उनके वहां से मेरे को लग रहा है डिफेंडर ही मारेगा हम लोग. डिफेंडर ही, वही हेडर ही आएगा. अच्छा चल, अच्छा अच्छा तू बता जल्दी कर. मेरा आई थिंक इज गोइंग टू बी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लीन शीट। पता नहीं क्यों आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लीन शीट, क्योंकि अब भाई बहुत गांड मरी होगी इनकी डिफेंस में, तो और बिसागा की तो गांड फाड़ दी गई होगी बिल्कुल ही, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2-0 वगैरह देख सकते हैं। तो भाई बहुत डांट पड़ी होगी भाई बिसागा को तो, और ट्रेनिंग में इतना हैरेस कर रहे होगे ना साले, तेरे चक्कर में गेम टाइम चला गया डिबीक और उसका, तो आई डोंट थिंक कि इतना इजीली छोड़ेंगे उसको। तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग क्लीन शीट, तो 2-0. 2-0 is perfect. I think I would have gone for that if not the other one. Chalo, so let's meet midweek. क्या मिडवीक, क्या मतलब इसके बाद मिलते हैं जब भी ये खत्म होता है। 19 को वी हैव वेस्ट हैम, एंड देन 23rd को वी हैव वेस्ट हैम अगेन, तो फिर तब we have West Ham on when do we have Saturday or Sunday? परसों है ना, दैट इज लाइक संडे को है, we have it on Sunday. संडे को वेस्ट हैम है, फिर उसके बाद 23 को फिर